Hello, hi friends, how are you? Hope you all are fine. I'm also fine, and winter has started, weather it's just surpassed of all previous records. Okay, and we are just getting hope when the vacation will be, because small children they are going early in the morning, they have to take bath, and but there is no option, they will have to go to school, जाना तो पड़ेगा ही. So hope in very soon there will be vacation, they'll enjoy winter as well as vacation. Now we'll enjoy our learning and teaching process. Okay, so we were discussing in our previous videos, I discussed about need and dare, and before that we were doing did plus verb first form, action of पास्ट. जो भी पास्ट में हमारी एक्टिविटी होती है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. ठीक है, सिंपल पास्ट. इट विल टेक V2 इन सिंपल सेंटेंस एंड V1 इन डिड प्लस V1 इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. मैं नहीं सोई, मैं नहीं उठी, मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने हिंदी पढ़ी, मैंने होमवर्क किया, मैं वहाँ गया, यहाँ गया, शॉपिंग की, शादी अटेंड की. whatever action you are doing, that has been done in past and there is no connection of that action in present. So for that we use did plus verb first form in negative, and in simple we use V2. Today we'll do another structure of past, that will be was, were plus V1 plus ing. It will be our structure of sentence. हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? was, were plus V1 plus ing. It will be in English, and whenever in the end of Hindi sentences you find रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे. So in English you have to use was, were plus V1 plus ing. Where we use रहा था, रही थी, रहा था, रहे थे. ठीक है. If you find in the end of Hindi sentences you find रहा था, रही थी, रहे थे, so in English there will be was, were plus V1 plus ing for continuity and progressiveness of past. For showing, for representing continuity, progressiveness of action and frequency of action which is in past, we use was, were plus V1 plus ing. Take example, हम खाना खा रहे थे, या तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? Why did you not pick my phone? I was taking bath. I did not pick your phone because that time I was taking bath, or I was driving, or I was just coming to you, that's why I didn't pick up. अब हो गए ना हमारे दोनों नोशन है, जो हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर है, एक प्रोसीजर के तहत हम काम करेंगे, देन इट विल बी क्वाइट इजियर एंड मोर इफेक्टिव. कैसे होगा? जो हमारे जो स्टेप बाय स्टेप हमने स्ट्रक्चर्स सीखे हैं उनको हम एक के साथ इंक्लूड करके हम फॉर्म बना सकते हैं, हमारी कंप्लीट सिचुएशन बन सकती है, हमारी कन्वर्सेशन कंप्लीट हो सकती है. सपोज आपने पास्ट सिंपल आपने सीख लिया है, you are talking with someone or you are discussing about a matter of past, so you might be using all the structure. तो वहां पे आपको देयर विल बी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे जरूरी. अब हो गया ना, किसी ने आप सिचुएशन बन गई, भाई तुम शादी में क्यों नहीं आए? Why did you not come to marriage? I did not come to marriage because I was not here. अब ये भी हम करेंगे जैसे हमने प्रेजेंट में किया था, है ही हूँ. लास्ट में हमें हिंदी के सेंटेंस में है ही हूँ मिलता है तो हम इज MR यूज करते हैं. इन द सेम वे इफ यू फाइंड था थी थे, ओनली था थी थे, सो इट विल बी वाज, वर. ओके, वो एग्जिस्टेंस को शो करता है. इट शोज हियर वाज, वर एक्ट्स एज लिंकिंग वर्ब. ओके,
I did not, sorry, dear, I did not attend your marriage because I was not here. I was out of town. I had a meeting, so I was busy there. तो वहाँ पे आपका सेंटेंस बन गया. यहाँ पे was verb, फॉर्म ऑफ वर्ब भी है. ठीक है. तो तुम, मैं खेल रहे थे, मम्मा पूछे होमवर्क क्यों नहीं किया. मम्मा मैं खेल रहा था, भूल गया. I forgot. I could not complete my homework because I was watching movie. Okay. स्कूल लेट गए, टीचर पढ़ा रहे थे, तुम डिस्टर्ब करे. वह मुझे परेशान कर रहा था, मैं अपना पेपर पूरा नहीं कर. ही वॉज डिस्टर्बिंग मी. टेक एग्जाम्पल. ही वॉज डिस्टर्बिंग मी. डिस्टर्बिंग मी. कौन कर रहा था? हु वॉज डिस्टर्बिंग यू? ही वॉज डिस्टर्बिंग मी. अब वाज वर्ब सेम. ही सी इट. ही सी इट. एनी नेम. नेम. थर्ड पर्सन सिंगुलर. सिंगुलर. इट विल टेक वाज. ठीक है. वाज प्लस V1 प्लस ing एंड रेस्ट I V U they plural. I V U they and plural. It will take verb plus V1 plus ing. It will be our structure. Okay. जहां पे भी आपको ही सी इट, वह कर रहा था, ही वॉज डिस्टर्बिंग मी. वह कर रही थी, सी वॉज डिस्टर्बिंग मी. वे कर रहे थे, दे वर. आगे ना देखिए प्लूरल के, दे वर डिस्टर्बिंग मी. हम कर रहे थे, वी वर डिस्टर्बिंग यू. वी वर डिस्टर्बिंग यू. वी वर चीयरिंग यू. वी वर कोऑपरेटिंग विद यू. वी वर प्लेइंग विद यू. ओके. एनी नेम, किसी का भी नाम आ गया. नेहा डांस, अच्छा डांस करे. नेहा वॉज डांसिंग वेरी ग्रेसफुली. नेहा वॉज सिंगिंग वेरी प्लीजेंटली. ओके. हर सिंगिंग वॉज वेरी. हर सिंगिंग. ओके. यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी करी. यहाँ पे सिंगिंग को नाउन बनाया है. हर सिंगिंग और हर सॉन्ग यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया है. वी डिडंट यूज. हर सिंगिंग वॉज वेरी प्लीजेंट. ओके. हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट. वी वर प्लेइंग फुटबॉल. हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल. पार्क जा रहे थे, पिकनिक के लिए जा रहे थे, वी वर गोइंग फॉर अ पिकनिक. वी वर गोइंग टू पिकनिक. वी वर गोइंग फॉर अ पिकनिक. सर पढ़ा रहे थे, मैम पढ़ा रही थी. वह चीटिंग कर रहा था, मेरा फ्रेंड चीटिंग कर रहा था. माई फ्रेंड वॉज चीटिंग. ओके. माई फ्रेंड वॉज cheating and he was caught by invigilator and he just fired him. Okay. He just fired him. In this way you may use this structure. इस तरह से हम आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर रहे थे. तुम कहाँ जा रहे थे? I saw you in market. Arun, where were you going yesterday? I saw you in the market. Or I saw you on the way when I was coming back from Delhi. Okay. रास्ते में मिले थे. तुम कहाँ जा रहे थे? Oh, that time I was going to my sister's home. Okay. I was going to my sister's home. कार कौन चला रहा था? Who was driving car? Okay. किसकी कार थी? Whose car was it? क्या तुमने खरीद ली? अब हमारा डिड यू बाय कार? नो नो, इट वॉज नॉट माइन, इट वॉज माई फ्रेंड्स कार. इन दिस वे, नहीं वो मेरी नहीं थी, वो तो मेरे फ्रेंड की कार थी. आई वेंट विद माई फ्रेंड. ही हैड ऑल्सो सम वर्क. सो हैड, उसको भी काम था. सेकेंड फॉर्म हैज, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड. हैड हो गया ना कि उसको भी काम था, मेरे फ्रेंड को भी काम था, इसलिए वो भी मेरे साथ है. ही वॉज ऑल्सो विद मी. we were going for a work. He had to go to his for his office work and I had to go my friend's sister's home. In this way you may apply. कौन जा रहा था? Who was going. कब जा रहा था? When he was
When was he going? कहाँ जा रहा था? Where was he going? कैसे जा रहा था? How was? अब क्वेश्चन होगा कैसे जा रहा? How was he going to his sister home? He was going by car. कौन चला रहा था? Who was driving car? क्या उसने ड्राइविंग सीख ली? Did he learn how to drive car? No, he was not driving. His friend was driving. No, he did not learn. नहीं, उसने नहीं सीखी. क्या तुम कल आ रहे हो? क्या तुम वहाँ उसकी शादी में गए थे? Did you go to your friend's marriage? No, I didn't go. वो मुझे बुला रहा था. He was calling me. वो मेरा इंतजार कर रहा था. He was waiting for me. मेरे फ्रेंड बहुत इंजॉय कर रहे थे. मैंने वीडियो कॉल पे देखा. माई फ्रेंड वर इंजॉइंग अ लॉट. आई जस्ट वॉच्ड इन वीडियो कॉल और आई फाउंड देम making fun. So hope you are getting my point. Whenever in the end of Hindi sentences you find raha tha, rahi thi, rahe the, it means showing the continuity and frequency of a action and progressiveness of an action of a past. We use this particular structure. Was, were plus verb first form plus ing. रहा था, कोई भी एक्शन है, चल रहा है, हम जा रहे थे, खेल रहे थे, लोग प्रे कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, सोप मना रहे थे. पीपल वर yesterday when I just passed through, when I was going to college, I found in the way that some mishappening was there and the people were mourning. Mourning means soap banana. People were small child was there. He was crying a lot. Okay, in this way you may apply this structure. Hope you get my point. आपको समझ आ गया होगा. And previous structure also, these structure in a whole complete way में आपको help करेंगे. Overall पहले के वीडियोस हैं वो भी आप देखिए, देखते रहिए. एक बार देखने से समझ में नहीं आए दोबारा देखिए और रूटीन में अपने एग्जांपल्स आप, और जो यहाँ की मैम दिख नहीं रहा वो लिखा हुआ आपके पास बुक्स में भी लिखा हुआ. मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ आपको. आई जस्ट रिपीट वन थिंग, यू जस्ट लिसन एंड स्पीक. जब तक बोलेंगे नहीं ना, हमारी हेजिटेशन कैसे रिमूव होगी, कैसे हम फ्रैंक होंगे, कैसे वो एक कॉन्फिडेंस आएगा जब तक हम बोलेंगे नहीं. हिंदी भी हमने when we just learn our mother tongue or regional language, that time also we were not comfortable or we were not master. तो पहले टुकड़ों में डिस्टोर्टेड वर्ड्स बोलने शुरू किए. मम बोला, माँ को कुछ बोला, ऐसे करते करते फिर हम कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करने लगे. तो एक प्रोसीजर होता है, उसको टाइम तो एक्विजिशन है, लैंग्वेज है, उसको भी एक्वायर करने में टाइम तो लगेगा. एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा. ओनली देन will gain mastery. Hope you get my point and enjoy my topic, and I just hope it will help you. Sorry. If you like my video, then please like, share and subscribe. Keep watching and keep liking, keep learning. Bye.